My name is Kaval Sethi and you are watching Celebrity Talks with Kaval. It's a great pleasure for me to introduce today's guest. Today's guest is a well-known singer, actor and a TV show anchor. He has sung songs in many movies like Aashik Banaya Aapne, Tees Maar Khan and many more. Can you take a guess? Let me give you some more clues. He is the winner of Indian Idol Season 1, first runner-up Clinic All Clear, Jo Jeeta Wahi Superstar, and second runner-up of Asian Idol. Yes, you probably guessed it right. Please welcome Abhijit Sawant. Hi Abhijit, how are you? Hi. I'm good. Hope all good with you all. All good. It is so good to talk to you. Actually, I think it was pending from last 1 week, I guess. Yeah. Finally. Okay, so first of all, I loved your new song very much. Your voice is it's so beautiful. And I think the video Keh De Mujhe has gotten 500K views in just less than 10 days. That's just like, wow. Yeah. Actually, it was long due और बहुत लोग wait कर रहे थे. So when I got that song, so everybody was like, "Arey, welcome back and thank you so much for getting that music," or something like that. So that excitement works for me. It worked well. So yeah, that way it started with a very good number. So True. yeah, I'm come somewhere lucky also in that sense. No, but actually the video, audio, lyrics, storytelling, everything is just top notch, So it's really beautiful. And I really want to know the process of this music video, the songwriting, composing, everything. Actually, it was very difficult because this song, especially this song, we were planning from last 1 year. So the video also we shot in March. और ये सब कुछ जो किया है ना, ये कहीं कहे तो एक प्रोसेस में रह के आहिस्ता 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 आहिस्ता, because individual music or non-film music or independent music, whatever you call it, it is not, there are no boundaries for it. ऐसा कुछ नहीं है कि एक प्रोसेस में ही चलेगा या एक प्रोसेस में ही करना पड़ेगा. But song was ready because me and my brother actually we used to work together, and we worked on this song specially. तो मुखड़ा तैयार था हम लोग उसके पास, and then I created the whole antara part. But the song was, everybody was thinking कि it's a journey song, has to be into a journey, somewhere we have to show the journey. And luckily I got a chance to go to Uzbekistan. And suddenly clicked कि उज़्बेकिस्तान में जाके वीडियो शूट कर सकता है. Because when we were shooting Junoon, तो Junoon shot in Ladakh, but सबसे पहले हम लोग का जो आइडिया था वो ये था कि जुनून हम लोग उज़्बेकिस्तान में शूट करेंगे. सो द रेकी करके हम लोग सब रेडी थे, बट परमिशंस के कुछ इश्यूज थे उस टाइम में. 2007-8 की बात कर रहा हूँ मैं. तो वो प्रॉब्लम था. But then I got a chance to go to Uzbekistan, क्योंकि उज़्बेकिस्तान जाना it's not like that easy for anybody, एक तो बहुत कंजर्वेटिव कंट्री है, एटलीस्ट अभी स्टार्टिंग डेज में, एंड पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो. बट चांस मिला, आई हैड अ शो देयर, इवेंट देयर. सो तो उसी मुकाबले में मैंने सोचा कि चलो यार, अच्छा एक मौका मिला है, लेट्स ग्रैब दिस होल अपॉर्चुनिटी. एंड देन आई गॉट माय कैमरामैन एंड पीपल, बट स्टिल देयर वाज नो स्टोरी इन दैट, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कैसे हम लोग शूट करेंगे, क्या दिखाएंगे, कैसे रिलेट करेंगे. सो इफ यू सी द होल वीडियो ऑल्सो, हम लोग ने ऑलमोस्ट आधा मिनट पूरा स्टोरी बिल्ड करने में ही दिया है. And so the messaging going on, and we are establishing one character, who's already in Uzbekistan, or getting a girl there is again a pain. And I don't know कैसे होगा, क्योंकि it's an Islamic country, तो इतना easy होगा कि नहीं किसी को अप्रोच करना भी. तो वो भी एक मतलब एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, या कहे कि थोड़ा संभल के चलना वाला पार्ट था. तो देन वी थॉट कि उससे अच्छा ये दिखाओ कि लड़की है ही नहीं.
So last minute we created some ideas, and that's how we got this whole thing done. But the beautiful part is the whole video and the whole country or city, you say, kahan par bhi aap camera lagao, everything is beautiful. आई थिंक आपने इतनी ब्यूटीफुल जर्नी हमें अपनी सॉन्ग की बता दी है, यू नो स्पेशली ईच एंड एवरी डिटेल. हम इट्स वेरी एज अ व्यूअर हमारे लिए बहुत इजी रहता है 3 मिनट के एक Yeah, सॉन्ग देखना, पर उसके right, पीछे की जर्नी को जानना, यू नो, आई थिंक इट्स इक्वली right. इम्पोर्टेंट. सो आई थिंक एक्चुअली मैंने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में वीडियो शूट किए, एंड एवरी वीडियो हैज हिज ओन स्टोरी. लाइक जुनून के टाइम में देयर वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू लद्दाख, और लद्दाख इज ऑन, मतलब वो एक तो है ही हाई, ऊपर से यू हैव टू टेक लॉट ऑफ प्रिकॉशंस, एक दिन का गैप लेना पड़ता है बिकॉज वो हाइट पे है. एंड देन जहां पर हम लोग शूट कर रहे थे, दैट इज अगेन, मतलब वो चाइना बॉर्डर के आसपास आता है. सो बहुत डिफिकल्ट था. एंड पेट में एकदम वो क्रैम्प्स आ रहे हैं, ये हेडेक है, यू आर नॉट, आई एम नॉट यूज्ड टू दैट होल, सांसें फूल रही है, एंड देन यू हैव टू डू दैट रोमांस आल्सो. सो या सो इवन देयर वाज वन वीडियो, हम लोग ने जालिमा का ये किया था, कवर किया था. तो वो हम लोगों ने, वी वांटेड टू शो लखनऊ का मार्केट, मार्केट प्लेस, एंड द रोमांस हैपेंस इन दैट मार्केट प्लेस. द मार्केट प्लेस इज वेरी बिजी, एवरीबडी इज वॉकिंग, एंड आई एम जस्ट चेसिंग द गर्ल. तो of course we can't go to Lucknow to shoot that whole video. So घाटकोपर में, मुंबई में ही घाटकोपर में एक एक बाजार था, तो वहां पर सेटअप लगाया, and everybody used to come and see that whole thing, and all shops are too close, like almost like this close, and everybody was like little irritated, like, in that business time we were shooting the video also. So yeah, there were मतलब many stories about my videos. I can, मतलब एक दिन पूरा एपिसोड कर सकता हूँ मैं इन सारी कर स्टोरी. सकता हूँ. Sure. Now let's go back a little bit, okay? Like 2004, when you won Yeah, Indian Idol season 1. yeah, You know, I think वो टाइम की जर्नी और अब में बहुत फर्क है लोगों में, yeah, you know, because उस टाइम people used to hook and say कि आज किसने अच्छा गाया, कौन एलिमिनेट होगा, क्या right, होगा, it was very real, I feel. So yeah. please share your journey, क्या change हुआ है from Indian Idol and what you are today. So please tell us something Actually, इंडियन आइडल जब आ रहा था, फर्स्ट सीजन, दैट वाज द फर्स्ट सीजन, और वो टाइम में इवन रियलिटी शो का इतना कल्चर था नहीं. एवरीबडी वाज वेरी न्यू इन दैट होल प्रोफेशन. एक पूरा अलग ही फील्ड था, तो किसी को कुछ भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है वीडियो, मतलब ये कैसे एपिसोड्स बनेंगे, और मुझे भी कोई गारंटी नहीं थी कि ये शो चलेगा भी नहीं चलेगा. But when you are young and you want to get into this music profession, you just start digging for options and opportunities. So I just thought ki chalo ek one more opportunity hai, let's try it out, because I was learning music that time. I was in college bhi tha, तो ये सब चल रहा था. Then I thought कि चलो एक ट्राई मारते हैं, कुछ तो होगा, कुछ तो रहेगा. So I was just trying to get into that whole thing, and फिर वो click हो गया actually. But if you think that time everything was raw. Even who was shooting that whole season, वो सब लोग भी इतने raw थे, किसको नहीं पता था कि क्या होने वाला है, next episode कैसा होगा. And that was somewhere I would say कि that's the beauty of that whole show also. I think it was very natural और वो बहुत real था. So I think that was a reason वो Yeah, लोग बहुत connect हुआ. I think that is the reason people अभी भी आपसे इतने connected हैं, and still they feel right, कि अच्छा अभिजीत सावंत ये तो Indian Idol 1 right. का winner था. और उसके बाद मुझे नहीं Yeah. लगता कि anyone किसी को इतनी सक्सेस मिली होगी उसके बाद. एक्चुअली फर्स्ट सीजन के साथ एक अच्छी भी बात ये हुआ, लाइक मोस्टली whenever we listen few songs, पुराने गाने जब भी ऐसे टाइम के बाद बजते हैं या कुछ, तो we always connect with some memories. Yeah. कुछ ना कुछ मेमोरी होती है, कोई गाना किसी के लिए गा दिया है या कुछ,
कोई मोमेंट पे गाना मेरे डैड का फेवरेट था या किसी लड़की को मैं सुना, देयर काइंड ऑफ स्टोरीज। बट ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा सीजन या पूरा शो लोगों की मेमोरी बन गया हो, ना। Very true. एंड दे कनेक्ट विद दैट काइंड ऑफ वाइब कि अरे हम लोग वोट करते थे और मैं उस टाइम में ये करता था, मेरा ये चलता था। तभी तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। एंड और वो सबसे खूबसूरत बात थी कि लोगों के पास टाइम भी था उस टाइम उन चीजों को चेरिश करने के लिए। एंड वो एक मेमोरी भी बन गई। हालांकि देखा जाए तो सोनी पे उस टाइम में सबसे बड़ा शो कौन बनेगा करोड़पति था। उस टाइम का भी कौन बनेगा करोड़पति वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट। बट उसके बाद जिस तरह से इंडियन आइडल ने एक वाइब क्रिएट किया लोगों के दिल में, Yeah. वो अभी भी इसलिए मुझे लगता है कि आज भी लोगों के मैं जब भी मोहब्बतें लुटाऊंगा गाता हूँ तो एक एक स्माइल आती है लोगों के चेहरे पर। एंड दे रिमेम्बर थिंग्स। तो ये एक ब्यूटीफुल देन कहें या इट्स अ गिफ्ट फॉर मी Definitely. नेचुरली। Definitely. So, after so many years, still your voice is so pure and soothing. So how do you maintain your voice? Like, do you do some riyaz or क्या आपकी routine है इसके लिए? Now because of I'm getting into independent music again, तो हेक्टिक हो गया, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया वर्क। लाइक बिफोर दैट ऑफ कोर्स वी वर डूइंग इन आई वाज गेटिंग इनटू प्लेबैक सिंगिंग और ये सब चल रहा था। बट मेकिंग इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज लाइक यू आर डूइंग एवरीथिंग। लाइक नेक्स्ट सॉन्ग जो हम आई एम planning to do it, वो तो completely composed, written, everything by me है। Wow. एंड या एंड वो हम लोग ने लंदन में जाके स्ट्रिंग्स रिकॉर्ड किए। मतलब हम लोग जा नहीं पाए बट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एंड लॉकडाउन हम ये काम चल रहे थे सभी। सो बिकॉज ऑफ दैट बहुत हेक्टिक हो जाती है चीजें। तो डिफिकल्ट हो जाता है रियाज करना या प्रैक्टिस करना। बट अदरवाइज मेरा रूटीन होता था कि मॉर्निंग में एक आधा घंटा 1 घंटा आई यूज्ड टू डू रियाज। एंड समवेयर आई बिलीव और मतलब माय टीचर आल्सो यूज्ड टू से कि यू हैव टू बी लिटिल अपफ्रंट एंड वेरी लाइक थोड़ा सा निडर होना चाहिए। यू कांट बी इनटू दैट शेल कि नहीं आई रिस्ट्रिक्शंस कम जितने रहेंगे उतना अच्छा रहता है। बट यू शुड नॉट ओवर पावर और यू शुड नॉट overdo anything. So, Right. so that's the Right. only thing, and it's all natural. Otherwise, no. Yeah. Touch wood. Yeah. So, who was your inspiration to start singing or learning music in general? Actually, my uncle is a stage artist. He is a singer, and I used to watch him performing on stage, and I used to see that whole everybody used to cheer for him, and that whole vibe. I used to like that whole feeling, and then I decided that I'll keep singing. तो मेरा फर्स्ट जो मतलब ऐसा कुछ ये नहीं था कि या कभी कभी होता है फैमिली में माँ बाप डिसाइड करते कि मैं अपने बेटे को सिंगर बनाऊंगा या सिंगर बनाऊंगी एंड देन दे मतलब उनको गाइड करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। तो माय प्रोसेस वाज कम्प्लीटली नेचुरल। मैं अपने लोगों इर्द गिर्द के लोगों को देख देख के आई स्टार्टेड लर्निंग। एंड स्कूल में मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था। सो एंड दैट वाज आल्सो एक्सीडेंटली हैपेंड कि मतलब आई वाज एक्चुअली सपोज टू सिंग इन द कोरस ये ग्रुप। तो कॉयर जैसा था और उसमें गाने का एक मौका मिला था। बट माय वॉइस वाज लिटिल मैच्योर्ड दैट टाइम। तो मुझे साइड में कर दिया, एक्चुअली मुझे निकाला वो ग्रुप में से क्योंकि या बिकॉज आई थिंक सब थोड़े से एक फीमेलिश वॉइस होती है उस टाइम में बट स्कूल के Yeah. टाइम में एंड माय वॉइस वाज लिटिल हैवी। तो मैं कभी मतलब उसके लिए किसी टीचर को दोष नहीं दूंगा बट दैट या बट उसकी वजह से देन आई थॉट कि आई ट्राई फॉर सोलो सिंगिंग। तो मैंने एक गाना ऐसी सोलो सिंगिंग के लिए आई आई सेड कि अगर आप यहाँ से निकाल रहे हो आई कैन सिंग दिस सॉन्ग। ऐसे करके आई जस्ट सैंग वन सॉन्ग। तो वैसे मुझे चांस मिला एंड देन द बूस्ट अप हैपेंड क्योंकि मोस्टली इट हैपेंस लाइक व्हेनेवर यू आर सिंगिंग in college or in school,
यू ऑलवेज बिलीव दैट सामने आपके दोस्त बैठे होंगे और वो आपकी बस टांगे खींचेंगे, दे विल ट्राई टू जस्ट पुल यू, कुछ ना कुछ बोलेंगे या आपको मतलब मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे, या फिर ये होने के बाद अगर कुछ फेल हुआ या गलत भी हुआ तो फिर उनके साथ क्लास में बैठना है, तो फिर वो जो खींचेंगे वो अलग ही लेवल पे होगा। तो बट वैसा कुछ हुआ नहीं। तो और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, मेरा एक स्टैंडर्ड ही बढ़ गया स्कूल में और सब लोग पहचानने लगे मुझे, तो और फिर वो स्पेशली एक बूस्ट लड़कियां, था। स्पेशली लड़कियां नहीं। नहीं हुआ, लड़कियां नहीं थी क्योंकि क्योंकि हमारा स्कूल पूरा बॉय स्कूल था, सो दैट वे ओह। आई वाज वेरी आई कंप्लीटली अनलकी फॉर इन दैट वे। तो कोई बात नहीं, जो तब नहीं हाँ, हुआ वो अभी हो रहा है। आई थिंक सो यू हैव उसके बाद वेरी हुआ है, फीमेल उसके फैन बाद फॉलोइंग। उसके बाद कुछ अलग ही हुआ, तो yeah. But yeah, it started after that. So, what singer or a musician you would like to collaborate, with your Mhm. next for your next project? Is there somebody in your mind? Actually, हर आर्टिस्ट एक काइंड ऑफ मतलब क्यूरियस होता ही है टू वर्क विद एवरीथिंग और डू एवरीथिंग। तो मैं भी वैसे बहुत क्यूरियस हूँ और मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक ये नहीं है, बट यस आई वांट टू वर्क विद एवरीबॉडी। आई वांट टू वर्क विद सम रैपर लाइक बादशाह और समबडी इन फ्यूचर, तो होपफुली वो हो जाए। Wow, that will be great. So, Yeah. is there like I think so? Is it like Bacha you're listening nowadays, or is there any one person whom you're listening nowadays? आई एम लिसनिंग एवरीबॉडी। पहले ऐसे हुआ करता था कि वी यूज्ड टू कैटेगराइज आवर म्यूजिक कि ये ऐसे गाने सुनेंगे, अच्छा फील है, बट एंड मैं थोड़ा सा देसी ज्यादा ही हूँ, तो इंग्लिश म्यूजिक सुनता हूँ, आई आई लिसन टू इट, बट वो सिर्फ फॉर द इंस्पिरेशन एंड मोर इंफॉर्मेशन वैसे गाने ज्यादा सुनता हूँ, इंफॉर्मेटिव रहता है तो ज्यादा सुनता हूँ, बट बट ऐसा नहीं है, कुछ मैं रिस्ट्रिक्शन कभी नहीं रखा आज तक। Okay, cool. So हाँ, you're very, very active on your social media for Instagram, on या your account. And you keep uploading a lot of about your projects, about a lot of reels, fitness stuff, you know. How do you manage, to stay on the top of doing, after doing so many shows and so many things, and how do you manage, कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं reels भी बना सकता हूँ, मैं fitness भी कर सकता हूँ. So how do you manage your या routine? प्लीज डोंट आस्क मी दिस, दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ माय होल लाइफ, मतलब कुछ भी करवा लो मुझे, लेकिन ये सोशल मीडिया हैंडल कैसे करना है ना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। तो अभी आज मुझे मतलब प्रेशर है कि मैं आज पोस्ट क्या डालूं, सो क्योंकि कल मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया, इफ यू मतलब थोड़ा सा नोटिसेबल रहेगा तो ये प्रेशर होता ही है। और समवेयर इवन आई एम नॉट वेरी एक्सट्रोवर्ट और वेरी ओपन काइंड ऑफ हर चीज पोस्ट करने वाला पर्सन। देयर आर पीपल एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, बट मैंने शायद ऐसा ज्यादा किया नहीं था, तो मेरे लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। बट आई बिलीव कि इन टूडेज वर्ल्ड यू हैव टू बी विजिबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड बी मतलब लोगों को यही एक मीडियम है जहाँ से आप सब कुछ चीजें आप लोगों को दिखा सकते हो, आप बता सकते हो और इंफॉर्मेशन दे सकते हो। बट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। मैंने जो रील्स आप देख रहे हैं ना जो बनाए हुए हैं, वो मैंने इतने फ्रस्ट्रेशन के साथ बनाया ना, मतलब बीच में फोन आ जाएगा किसी को, या या स्टैंड नहीं है तो कहीं उल्टा पुल्टा करके मोबाइल 3-4 बार गिर जाएगा। सो या तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, even any interview or anything na, I am very conscious about anything visual, जहाँ visual जाने वाला है मेरा, तो तो मैं इसलिए थोड़ा सा एक तो भागता हूँ, नहीं तो फिर आई मेक श्योर कि सही तरीके से हो, आप चीज में इतना कॉन्फिडेंस सोचते होना हो, चाहिए। आप इतना सोच रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आप इतना बेस्ट कंटेंट डाल रहे हो, इतना बेस्ट कर रहे हो, सो लाइक हैट्स ऑफ। मेरे लिए ऐसा है ना समटाइम्स कि ये टेक्नोलॉजी जो है ना अभी जो डेवलप हो रही है चीजें, दैट बिकम्स या मतलब ये रील बनाना है, तो रील में सारी चीजें, मतलब मैं कितने लोगों का ऐसा रील देखता हूँ, देन आई थॉट कि अरे कैसे किया रहेगा ये लोग ने, या दैट एडिटिंग पार्ट एंड एवरीथिंग,
I'm little slow in those things, but मेरा एक ही अच्छी बात है कि I keep in mind कि ये ऐसा हो सकता है, तो मैं उसमें मतलब जो आदमी अगर 10 दिन में कर लेगा या 5 दिन में कर लेगा, 1 घंटे में, I will take little more extra time, but I will do it finest. मतलब जो अच्छे से कर सकता हूँ वही मैं करने की कोशिश करूँ. I don't like to put anything which is not relatable to me also. क्योंकि समटाइम्स आई बिलीव कि सोशल मीडिया पे आप, मैं स्पेसिफिकली ये मानता हूँ कि जो मैं जैसा हूँ उसमें और 10% ऐड करके मैं लोगों के सामने आ सकता हूँ. आई डोंट वांट टू क्रिएट अ फेक माय प्रोफाइल. सो वो True. उसकी वजह से थोड़ा बेटर भी होता है, कभी कभी इट्स ऑल ओके होता है. Okay, now let's go to next part of our show. या It's actually a game. Second round is a game. Okay, so I have planned a game for you, which is called Everyday Questions. ओके Where I will ask you few questions and you have to answer me like very fast. ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट. मैं हाँ. Don't worry, it's general questions. Yeah. Okay, so if we met aliens one day, okay, and for some reason they only understand us in songs, what Okay. song would you sing and why? मैं वो गाऊंगा, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे. तो बिकॉज मुझे लगता है कि हम लोग को कोई अभी थोड़ा सा डिफरेंट लेके जाना चाहिए, क्योंकि वी आर जस्ट फॉलोइंग एवरीथिंग डिफरेंटली एंड वी आर जस्ट गोइंग इन वन डायरेक्शन. Yeah. तो शायद एलियंस आ जाएंगे और थोड़ा सा अलग कुछ करेंगे. आई होप कि इट वर्क्स वेल फॉर फॉर आवर Well, ह्यूमन काइंड और सब कुछ. बट yeah. उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, अदरवाइज आई डोंट मतलब. बट यही मैं आई विल वेलकम देम विद माय Yeah. मतलब एकदम दिल खोल के कि आ जाओ भाई, आ जाओ, कुछ सारे करो. गाने सब सुनो. सब सुन लो. और म्यूजिक Okay. सुनाओ, आपको म्यूजिक बनता है तो कुछ और सुना. विल True. कोलैबोरेट वैसा. Yeah. Okay, so what is the first song you remember you used to sing as a child? फर्स्ट सॉन्ग, मैं एक्चुअली बहुत अलग गाने गाता था, क्योंकि व्हेन आई वाज लिसनिंग ऑल सॉन्ग्स, सो आई यूज्ड टू फॉलो माय अंकल. सो ही यूज्ड टू लिसन ऑल किशोर कुमार एंड तो दोस नंबर्स. तो मुझे याद है, मैं एंड दैट इज माय लाइफ टाइम फेवरेट सॉन्ग आल्सो. जबकि हालांकि उसका लाइंस में बाद में समझ में आया. जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं. सो बचपन में पता नहीं क्यों, मतलब मैं स्कूल में था तब ये गाना बहुत चलता था घर में, तो वही एक याद था मुझे उस टाइम. Wow, amazing. I mean, okay, so the next is what qualities do you think it's necessary for an inspiring singers? In today's time, I think every singer has to be मतलब multitasking. It is not like कि आप सिर्फ singing कर रहे हो. Like when we started, like when I started my career, even my teachers and Guruji and my even dad used to say कि don't get into any instrument, don't start playing any instrument, क्योंकि then you'll lose focus in singing. But आज के time में I believe everybody, all the musician, all the singers should know how to play instrument, any instrument. और जो प्रोग्रामिंग साइड है म्यूजिक का, तो वो कैसे करना है वो भी शायद पता होना चाहिए. बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन नाउ डेज, क्योंकि मैं जब आज सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर मी. सो it is coming from my experience, I'm saying this. True, correct. I think because it will always help you if you know the Yeah. instruments as well. Yeah. Cool. So, what is your favorite song, when you perform? So, what is the one song which you always love to sing? I'll have to sing मोहब्बतें लुटाऊंगा, क्योंकि and I start with that. My show starts with मोहब्बतें लुटाऊंगा. Now I'm doing 31st का event in Bombay, in outside Bombay. So
31st event, and the whole thing is very peppy and fast and everything. Everybody wants to dance on that whole thing. But now I want to do Mohabbatein Lutaunga. I have Please to sing figure for us. Sing for us. Sing for yeah, us. yeah. You have to sing for us. मोहब्बतें लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज आज बहलाऊंगा, इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा. Oops, wow. Amazing. I just love this song. I it's just my favorite. This is my favorite song all time. I just love it. Thank you for singing. Thank you. मेरे को लग रहा है वो गेम शो हमारा साइड पर हो गया, मैं आपकी सिंगिंग में ही हो गई हूँ. It's so beautiful. Okay, so what is the one thing you like about being a musician? One thing you hate about being a musician. I like is it's a very creative field और बहुत open है, like what you want to do and what you feel you can portray that. वो मुझे लगता है कि I don't know, I can't say कि यही सबसे बेस्ट है, बट मेरे लिए सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि जिस तरह से एक सिक्स सेंस होता है, तो वी हैव अ सिक्स सेंस अबाउट about the song or about a string, about any chords sometimes. कोई भी अच्छी चीज बजती है या अच्छी चीज सुनाई देती है, तो वो जो एक फीलिंग होती है, समटाइम्स इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. वो चीज पे हम लोग मतलब बहुत टाइम गुजार सकते हैं. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट इनटू म्यूजिक और रहना एज एन आर्टिस्ट. बैड पार्ट यही है कि आप अपने आप को कैसे सामने पोर्ट्रे करना चाहते हो. दैट इज अ बिग टास्क. मतलब वो बहुत कश्मकश वाला चीज है कि एज अ पर्सन आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को, द होल सोसाइटी का एक जो एक प्रैक्टिकलिटी है उसके साथ चलना है, या फिर एक आर्टिस्ट का एक क्रिएटिव माइंड है उसके साथ चलना है. सो दैट बैलेंस इज समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन. True. Okay, so tell us one embarrassing moment on stage. There are many actually. बट ये शायद मुझे लगता होगा कि ये मैनी है. बट वैसा एक बार हुआ था, जैसे आई वॉज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज एंड सडनली जो पूरा स्टेज का लाइट्स था वो ऑफ हो गया. तो एंड मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो चली गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट एकदम से ब्लैंक हो गया. एवरीबडी वाज डांसिंग डूइंग समथिंग, और सडनली पक करके सब बंद हो गया. एंड जब लाइट्स वाइट्स ऑन हुए तो my other player, my musician, one of the musician had a laptop that time. तो वो विंडोज का लैपटॉप हुआ करता था, और वो जब शुरू हुआ तो वो पुराना वो जो एक ओपन होने के बाद वो म्यूजिक आता है करके, वो पूरे एरिया में बजा. तो दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग कि अरे क्या यार, मतलब बट या अदरवाइज मुझे बहुत कॉन्शियस रहने की आदत है स्टेज पर, तो वैसे मैं बहुत कॉन्शियस रहता हूँ कि कुछ गलत ना हो जाए कहीं बाहर ऐसा कुछ. हाँ, सबसे ज्यादा कॉन्शियस मैं बस मतलब मेरे कोई बटन खुले ना हो, यही सबसे बड़ा कॉन्शियसनेस रहता है. तो बाकी सब चल जाता है, बट यू कैन इजीली मैनेज. अभी के टाइम में तो और भी ज्यादा एनीबडी कैन जस्ट get a picture or something like that on social media. True. Very true. Okay, so what one message you want to give it to your fans? I just want to say कि बस आप इसी तरह से प्यार देते रहिए. Thank you so much for giving so much love and respect and everything. आपने जिस तरह से अभी तक होल्ड अप किया है, thank you so much for it. और yes, अभी का टाइम डिफरेंट है, and I am trying to cope up with that expectation, and you will see me more and more in my next music. Yes. So can you sing few lines from Keh De Mujhe for our viewers? Yes. रब से लिया ये मैंने वादा हर एक जन्म,
तुझको ही बस वो बनाए मेरा सनम, मेरी सांसों की आवाजें भी बढ़ जाती है जो आस पास से तू गुजरे, मैंने कर दिया वादा हुआ तेरा ही मैं, आ कानों में तू चोरी छुप के कह दे मुझे तू है मेरा, कह दे मुझे तू है मेरा, हाँ. Wow, thank you, thank you, thank you. Thank you so much for coming to the show. And Abhijit, whenever you're visiting Dubai, you have to message me. I will love to host you. Thank you Sure. so much. Thank you so much. I was And there for a week. Abhi next time, pata nahi, next time hopefully next oh, year. no, But whenever you are there, with sure, family, without anyone, please do let us know. yeah, I will. Thank you Yes. so much. Thank you Thank you for so the much. itne All the very patient best for your aapne. upcoming shows and songs. Thank you. Thank you so much. See you guys. See you. Thank you. Hi, मैं हूँ अभिजीत सावन. Watch Celebrity Talks with Kaval and share and subscribe the channel.